السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہ میں رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ، نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں۔ ہے تیرے خیال کا معجزہ، مجھے اس سے بڑھ کے ملے گا کیا؟ ہے جمال آمد مصطفیٰ، تیری روشنی کا اسیر ہوں۔ تیرے نقش پاک کے طفیل ہی مجھے روشنی کے نگر ملے، ہے جو خاک تیرے دیار کی، میں اسی کا عشرِ اشیر ہوں۔ میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ ہے جو نعت آمد مصطفیٰ، میرے ذوق عشق کا کارواں، جو مدتوں سے رواں دواں، میں وہ ایک جم غفیر ہوں۔ نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ، نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں۔ مجھے بخش ہمت و حوصلہ کہ میں کارزار حیات میں، جو نہ کھچ سکی وہ کمان ہوں، جو نہ چل سکا میں وہ تیر ہوں۔ ہے جو نعت آمد مصطفیٰ، یہی در حسن ہے نجات کا، میں غلام سید مرتضیٰ، میں گدائے شاہ کبیر ہوں۔ نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ، نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں۔ اور محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے، محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے، جسے قدرت نے جنت کے حسین سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ وہ مٹی ہے جس میں آپ کے قدموں کی خوشبو ہے، یہاں پر سانس لے لینا بھی عبادت سے بالا ہے۔ یہی اعزاز ہے میرا، بس اسی پر ناز کرتا ہوں، غلام مصطفیٰ ہونا میرا حوالہ ہے۔ غلام مصطفیٰ ہونا میرا، اور جو جاؤ جلال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جو جاؤ جلال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جو خد و خال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جو مال و ملال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جینا تو ان کا جینا ہے جو عشق مصطفیٰ کے لیے جیتے ہیں، جینا تو ان کا جینا ہے جو عشق مصطفیٰ کے لیے جیتے ہیں۔ نہایت واجب احترام معزز مہمانان گرامی، عاشقان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے، جن کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ بس بلا تبدیل دوستان محترم، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، وہ بس بڑی توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر۔ اب دیکھیں دوستان محترم، سخی ہونا اور بات ہے، مالدار ہونا اور بات ہے۔ سخی ہونا، مالدار ہونا اور بات ہے۔ ہر سخی مالدار ہوتا ہے لیکن ہر مالدار سخی نہیں ہوتا۔ ہر دیندار دنیا کو سمجھتا ہے لیکن ہر دنیا دار دین کو نہیں سمجھتا۔ ہر کامل عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم کامل نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ہر صابر شاکر ہوتا ہے لیکن ہر شاکر صابر نہیں ہوتا۔ ہر صوفی شاعر ہوتا ہے لیکن ہر شاعر صوفی نہیں ہوتا۔ ہر خوبصورت انسان خوبصورت ہوتا ہے لیکن ہر خوبصورت انسان خوبصورت نہیں ہوتا۔ خوبصورت نہیں ہوتا۔ تو دوستان محترم، بات اصل میں دل کی ہے۔ بات کس کی ہے؟ دل کی۔ وہ کہتے ہیں نا، ایمان تب درست ہوتا ہے۔ بس دو چار پانچ منٹ بڑی توجہ کے ساتھ سننا کہ ایمان تب درست ہوتا ہے جب دل درست ہو، دل تب درست ہوتا ہے جب زبان درست ہو، زبان تب درست ہوتی ہے جب آنکھ درست ہو، کیونکہ دل کی ساری بیماریاں آنکھ کے ذریعے جاتی ہیں۔ دل کی ساری بیماریاں صاحب آنکھ کے ذریعے جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں ہڈی نہیں رکھی۔ نہ آنکھ میں ہڈی ہے، نہ دل میں ہڈی ہے، نہ زبان میں ہڈی ہے، نہ نفس میں ہڈی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی سختی پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، لوہا نرم ہو تو اوزار بنتا ہے، مٹی نرم ہو تو زرخیز بنتی ہے، آٹا نرم ہو تو روٹی بنتی ہے، دل نرم ہو، سونا نرم ہو تو زیور بنتا ہے، اور دل نرم ہو تو اللہ کا گھر بنتا ہے، اللہ کا گھر بنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر کرتا جاؤں گا، آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی موقع پر پوچھا، کئی موقع، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو سرکار ہر بار ایک ہی بات کہتے تھے کہ دل کو ہر برائی سے صاف رکھنا، دل میں کسی کا ملال نہ رکھنا۔ تو ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، یا رسول اللہ میں جب بھی پوچھتا ہوں
आप एक ही जवाब नहीं कहते नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, जिक्र अस्कार करो, तस्बीह पढ़ो, सिर्फ एक बात कहते थे, क्या करो, दिल में किसी का मलाल ना रखना, मैल नहीं रखना किसी का। तो जब पूछा तो कहा या रसूल अल्लाह, हर बार एक ही नसीहत करते हैं, आपके दिल में किसी का मैल न रखना। तो सरकार ने फरमाया जब तुम्हारा दिल हर बुराई से साफ हो गया, हर बुराई से पाक हो गया, तो तुम जरा बराबर अमल करोगे, पौध पहाड़ से बड़ा बन जाएगा, पौध पहाड़ से बड़ा बन जाएगा। अब देखें दोस्तान मोहतरम, ये चांद और सितारे जमीन से करोड़ों मील दूर है कयूम साहब जी, तो करोड़ों मील दूर है, लेकिन आप जमीन पे शीशा रखें और एक बड़े बर्तन में साफ पानी रखें, वो जो करोड़ों मील दूर हैं आपको करीब नजर आएंगे। बेशक किसकी वजह से नजर आएंगे? शीशे और साफ पानी की वजह से। मतलब इसका ये, जब हमारा दिल पानी की तरह नरम हो गया, पानी की तरह नरम हो गया, शीशे की तरह साफ हो गया, तो दोस्तान मोहतरम अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी हमारे करीब होंगे और हम उनके करीब होंगे। क्योंकि देखिए दिल किसने बनाया है? अल्लाह ने। तो ये कोशिश करें कि इसमें अल्लाह ही रहे। वाह 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 वाह, क्या कहने, कौन रहे? अल्लाह ही रहे। जिसने बनाया इसमें कयूम साहब कौन रहे? अल्लाह ही रहे। आप देखें हाज़रीन मोहतरम की, एक दफा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी साहबी ने कि या रसूल अल्लाह, ये बड़े गौर से सुनना, या रसूल अल्लाह कि वो कौन सा अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है और अल्लाह के करीब बहुत बड़ा है? कौन से अमल हैं जो अल्लाह के करीब बहुत बड़े और अल्लाह को बड़े पसंद है? इल्म है, दौलत है, या ताकत और इक़्तिदार है? या ताकत और इक़्तिदार है, दौलत है, या इल्म है? अब ये सुनना, क्योंकि मनाजुल कुरान का पैगाम यही है, वो फिक्र की बात भी करते हैं और जिक्र की बात भी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक फरमाया। फिक्र की बात भी करते हैं और जिक्र की बात भी करते हैं। बहुत अच्छे, किसकी बात करते हैं? क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ जिस जिक्र के साथ फिक्र नहीं, उस जिक्र का कोई फायदा नहीं। जिस इल्म के साथ अमल नहीं, उस इल्म का कोई फायदा नहीं। जिस दौलत के साथ बरकत और सखावत नहीं, उस दौलत का कोई फायदा नहीं। जिस नेकी और इबादत के साथ खशू और खुशू नहीं, उस नेकी और इबादत का कोई फायदा नहीं। और जिस जिंदगी में अल्लाह रसूल की अताअत और बंदगी नहीं, उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। और जिस ज़बान पे जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा नहीं, उस ज़बान का कोई फायदा नहीं। ज़बान का कहते हैं ना, ज़बानों में सबसे खूबसूरत ज़बान वो है जो मुस्तफ़ा का जिक्र करती है। ज़बानों में सबसे खूबसूरत कान वो है जो मुस्तफ़ा का जिक्र सुनते हैं। अल्फाजों में सबसे खूबसूरत अल्फाज वो हैं जो मुस्तफ़ा के जिक्र के लिए चुने जाते हैं। घरों में सबसे खूबसूरत घर वो हैं जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलें होती हैं। और इंसानों में सबसे खूबसूरत इंसान वो हैं जो जिक्र की महफिलों का एहतमाम करते हैं। तो साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो कौन से 3 अमल है जो अल्लाह के यहाँ बड़े मकबूल है और अल्लाह को बड़े पसंद है? शादी किबला। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इल्म से अल्लाह की मखलूक को फायदा हो, अल्लाह की दौलत, अल्लाह के दीन को फायदा हो, अल्लाह की मखलूक को फायदा हो, अल्लाह के दीन को फायदा हो, वो इल्म अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल है और अल्लाह को बड़ा पसंद है। जिस दौलत से अल्लाह के दीन को फायदा हो, अल्लाह की मखलूक को फायदा हो, वो दौलत अल्लाह के यहाँ बड़ी मकबूल और बड़ी पसंद है। और जिस ताकत और इक़्तिदार से अल्लाह की मखलूक को फायदा हो, अल्लाह के दीन को फायदा हो, वो ताकत और इक़्तिदार अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल और बड़ा पसंद है। अगर इन तीनों से अल्लाह के दीन को फायदा नहीं, अल्लाह की मखलूक को फायदा नहीं, तो सरकार ने फरमाया तीनों बेकार है, वबाल जान है और जहन्नम का समान है। फिर ये इल्म भी हमें जहन्नम में लेके जाएगा, ये दौलत भी हमें जहन्नम में लेके जाएगी, ये ताकत और इक़्तिदार भी हमें कहाँ लेके जाएगा? जहन्नम में लेके जाएगा। कि इकबाल ने कहा ना, अल्लाह से जो दूर करे वो तालीम भी फितना, औलाद भी, अमवाल भी, जागीर भी फितना, न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। शमशीर है क्या? नारे तकबीर भी फितना। प्रोफेसर साहब देखें, एक आदमी अगर पट्टी बांध के अल्लाह अकबर की, यूं साहब जाके खुद का हमला करता है, 100 आदमियों को मार देता है, तो ये फितने के लिए उठाया गया। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह आज प्रॉब्लम पता क्या हुई है प्रोफेसर साहब, यूं साहब, हम अल्लाह को बड़ा कहते हैं
महनाज साहब अल्लाह को क्या बड़ा कहते हैं लेकिन खुद छोटे नहीं मानते, ये प्रॉब्लम है। नफ्स बड़ा है। मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है। वाह वाह। असल में ना यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। अल्लाह को बड़ा कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उस बात से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी ये मराकबे ये सुरूर तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। और लिबास से पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, लिबास से पारसाई से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। और पीर नसीर साहब पढ़ते हैं कि मौजूद फजीलत भी कोई है कि नहीं, तालीम से निस्बत भी कोई है कि नहीं, पोशाक तो कीमती पहन ली तूने, तेरी अपनी कीमत भी कोई है कि नहीं, तेरी अपनी कीमत भी कोई है कि नहीं। और दाग सजूद तेरी जबीन पे हुआ तो क्या हुआ, दाग सजूद तेरी जबीन पे हुआ तो क्या हुआ, तू ऐसा सजदा करके जमीन पे वैसा सजदा करके कान निशान हुए। दाता साहब ने सजदा किया, जमीन पे निशान रहा। मैं कई बार कहता हूँ ना कि जमीन पे निशान ना बनाओ, जमीन पे निशान बनाओ। इकबाल ने वो सजदा किया, जमीन पे निशान छोड़ गया ना, 100 साल से ज्यादा हो गए, ऐसे ही है ना। जी जी जी। उन लोगों को 800 साल हो गए हैं, जिंदा हैं या नहीं, उनके सजदे भी जिंदा है। वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वो एक सजदा जिसे रूह जमीन कांप उठती थी, आज उसी को तरस गया मिंबर और मेरा। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। सुभान अल्लाह। तू झुकता कहीं और है। हाँ, वो इकबाल ने क्या खूब बात की, कहता आज मस्जिद में अजीब शिकवा किया है खुदा ने, आज मस्जिद में अजीब शिकवा किया है खुदा ने, तो रोजाना मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। वाह 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 वाह। क्या वो सब कुछ तो दे ही रहा है, हम ना भी मांगे तो दे रहा है। क्या कहने, क्योंकि हाँ, अल्लाह की मोहब्बत के बगैर, हजूर की मोहब्बत के बगैर दुनिया तो मिल सकती है, दुनिया वाला नहीं मिल सकता, ये पक्की बात। दुनिया तो क्यों साथ मिल सकती है, दुनिया वाला नहीं मिल सकती। देखें, दुनिया की हर चीज की मोहब्बत अल्लाह से दूर करती है, सिर्फ हजूर की मोहब्बत अल्लाह के करीब करती है। आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, महनाज साहब, क्यूम साहब, हमारा कोई खून का रिश्ता है, जी जी। क्योंकि दीन के रिश्ते खून के रिश्तों से बड़े हैं। बेशक बेशक बेशक। दीन के रिश्ते खून के रिश्तों से बड़े हैं, बड़े हैं। नूह अलैहिस्सलाम का कनान का बेटे की तरह खून का रिश्ता था ना, क्योंकि रब ने फरमाया जो तेरी बात मानता नहीं है वो तेरा है ही नहीं। हाँ सुभान। असल बात मानने की है, असल बात किसकी है, मानने। क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत के सारे दावे आलमगीर साहब हजूर की मोहब्बत पर परखे जाएंगे। अल्लाह की मोहब्बत के सारे दावे किस मोहब्बत पर परखे जाएंगे, हजूर की मोहब्बत पर। रब ने फरमाया ना मेरे महबूब तू सारी कायनात से मोहब्बत करता है, लेकिन मैं सारी कायनात से मोहब्बत नहीं करता, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है। क्या कहने भाई साहब, क्या कहने, मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, खुद से मोहब्बत करता हूँ। देखे दोस्तान मोहतरम, जब हमारी जिंदगी का प्रोफेसर साहब, ये बड़ी कीमती बातें हैं, जब हमारी जिंदगी का हर लम्हा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत और गुलामी में गुजरेगा, तो शब कदर भी फायदा देगी, शब मेराज भी फायदा देगी, लैलतुल कदर भी फायदा देगी, कुरान भी फायदा देगा, शबान भी फायदा देगा, रहमान भी फायदा देगा, रबीउल अव्वल भी फायदा देगा, जिंदगी का हर अमल फायदा देगा। बात समझे ना, क्योंकि हजूर की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियों में नुमाया किरदार अदा करता है। जो शख्स भी हक का मुतलाशी है, उसे इससे बेहतर रास्ता और कहीं नहीं मिलेगा। जब हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो हमारी मंजिल चांद नहीं, सितारे नहीं, मरीख नहीं, अर्शे मुअल्ला होगी, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। वाले का ना अकल कुर्बा कुर्बा पेश है मुस्तफ़ा, बस अभी खत्म करूंगा। अकल कुर्बा कुर्बा पेश है
मुस्तफ़ा। इकबाल ने कहा तिजारत की बात आए तो अकल से काम लो, अदालत की बात आए तो अकल से काम लो, रियासत की बात आए तो अकल से काम लो, सियासत की बात आए तो अकल से काम लो, दुनिया की बात आए तो अकल से काम लो। लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत की बात आई तो अकल के चिराग गुल कर दो, अकल के दरवाजे बंद कर दो। या पीर मेरठ शाह साहब ने कहा ना, कोई मिसल ने ढोलड़ दी, चुप कर मेरे अली, ये जान नहीं हो बोलड़ दी, इस सूरत नु मैं जान आखा ते जान है जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बढ़िया, और करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी न जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां फिदा। वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो इकबाल ने कहा ना, हमारी इस्ते हमारे वजूद से नहीं बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ वाबस्ता है। दीन और दुनिया में अगर कोई चीज काम आएगी वो है निस्बत रसूल, वो है गुलामी रसूल। इसलिए इकबाल ने कहा ना, अक्ल कुर्बा पेश, इसलिए इकबाल ने कहा ना कि अक्ल कुर्बा पेश है मुस्तफ़ा। बात समझे ना, कि मतलब कहने का ये कि इकबाल ने कहा क़यामत तक जमीन से जो छोटी सी बूटी भी बाहर निकलेगी ना, जब तक वो हुजूर पर दरूद नहीं पड़ेगी ना, उसे बाहर निकलने का हुक्म ही नहीं, बाहर निकलने का उसे हुक्म ही नहीं है। बात से नहीं किसी ने पूछा आपको इतनी इज्जत शोहरत मर्तबा और मकाम मिला है, इकबाल को पूरी दुनिया जानती है। मैं कई बार उस दिन भी बात की कि वो 3 मरले के घर में इतना बड़ा आदमी पैदा हुआ, 3 मरले के घर में, इतना लोग बड़े बड़े घरों की बात करते हैं ना, तो बात मैं कहता हूँ मकान छोटा हो या बड़ा, में नाज साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मकीन बड़ा होना चाहिए, रहने वाला बंदा वो बड़ा होना चाहिए। घर छोटा और फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर छोटा हो या वो फर्क पड़ता है। तो वो 3 मरले के घर में इतना बड़ा पैदा हुआ, आप लोगों ने उसका घर देखा होगा, तंग सी गली है साहब, जी जी, तंग सी गली में इतना बड़ा आदमी पैदा हुआ कि जो हम उसको पढ़ते हैं हमारी भी इज्जत होती है। आलमगीर कादरी साहब पढ़ते हैं, लोग इनके भी हाथ चूमते हैं, ये अपना कलाम नहीं पढ़ते, इकबाल का जब पढ़ते हैं लोग इनके हाथ चूमते हैं। ना, तो इतना बड़ा आदमी पैदा हुआ कि पूरी दुनिया में इज्जत के साथ झंडे गाड़ गया। मैंने उस दिन ये बात की कि कामयाबी ये नहीं है कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, असल कामयाबी ये है कि आपको किस तरह के लोग पसंद करते हैं। मानिए किस तरह के आलमगीर, बहुत खूब किस तरह के लोग पसंद करते हैं। बात ये नहीं है कि कितने लोग पसंद करते हैं। तो बस दोस्तान मोहतरम, मैं कई बात कहता हूँ ना कि फॉलो उसको ना करो जो चांद पे जा रहा है, फॉलो उसको करो जो चांद के 2 टुकड़े करके, फॉलो उसको ना करो जो चांद पे जा रहा है, फॉलो उसको करो जो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा रहा है, फॉलो उसको ना करो जो सूरज की रोशनी को कैद करके बिजली बना रहा है, फॉलो उसको करो जो डूबे हुए सूरज को वापस पलटा रहा है, फॉलो उसको ना करो जो अपनी ताकत से दूसरों को ज़ेर करता है, फॉलो उसको करो जो 1 प्याला दूध से 1400 साहबा, फॉलो उसको ना करो जो अपने लिए जीता है, फॉलो उसको करो जो दूसरों के लिए जीता है, फॉलो उसको ना करो जो दोस्त को भी दगा देता है कि यूं साहब, फॉलो उसको करो जो दुश्मन को भी दुआ देता है। अक्लमंद वो नहीं है जो आज में रह के कल की तैयारी करे, कल में रह के परसों की तैयारी करे, परसों में रह के तरसों की तैयारी करे। अक्लमंद वो है जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करे, दुनिया में रह के किसकी तैयारी करे, आखिरत की तैयारी करे। तो बस दोस्तान मोहतरम, बातें तो बहुत हैं, जिंदगी बदलने के लिए मैं कई बार कहता हूँ एक जुमला ही काफी है। क्या है एक जुमला बहुत, बस करियो यार, अलफ दरकार। और एक दफा अल्लामा इकबाल एक बुजुर्ग के पास बैठे हुए, बस खत्म करूंगा, कि एक जुमले से जिंदगी बदल जाती है। इकबाल बैठे हुए थे तो उन बुजुर्गों के पास उनका एक मुरीद आया, तो उसने अपने पीर साहब से कहा, पीर साहब मेरे लिए दुआ करे, मेरे ऊपर 100 रुपया कर्जा है। अब एक जुमले से जिंदगी बदलती है, ठीक है ना। अब मुरीद ने क्या कि पीर साहब की जेब में 10 रुपए डाले और कहा कि दुआ करें मेरे ऊपर 100 रुपया कर्जा है, ये कर्जा उतर जाए। पीर साहब ने दुआ की, वो मुरीद चला गया। अब इकबाल सारा मंजर देख, क्योंकि वली घर था, वली बनाने वाला था, यूं साहब वली बनाने वाला था। अब बात समझे ना। तो उसने जब इकबाल ने ये मंजर देखा तो इकबाल ने कहा कि पीर साहब आपकी दुआ आपके हक में बड़ी जल्दी कबूल हुई है।
आपको 10 रुपए मिले हैं ना। जब ये आपके पास आया था, इसके ऊपर 100 रुपया कर्जा था, अब आपसे मिल के गया है, 110 रुपए कर्जा हुआ। आप ये बताएं कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए आए हैं या बढ़ाने के लिए आए हैं? बात समझा ना। उन बुजुर्गों ने अपनी किताब में लिखा, मैंने पढ़ा बेगम साहब, उन्होंने कहा इकबाल के इस एक जुमले ने, आप मुझे ये बताएं कौन सा इकबाल ने कुरान पढ़ा, कौन सी हदीस पढ़ी, कौन से अशार के, एक जाटवी सीधी सी बात की है ना जी, नजराना सूद है पीराने हरम के लिए। हरम के लिए। तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं मैं उठ के गया, उन बुजुर्गों ने अपने मुरीद के घर उसको 110 रुपए दे के आया। मेरी ये जिंदगी पढ़ने पढ़ाने से नहीं बदली, इकबाल के एक जुमले ने बदल के रखा। क्या कहने जुमले ने बदल के रख दी। किसी ने मट्टी से पूछा ना कि अल्लाह ने सारे खजाने तेरे नीचे रखे हैं। सारे खजाने किसके नीचे हैं जी? मट्टी के नीचे। अल्लाह ने सारे खजाने तेरे नीचे रखे हैं, इसकी वजह क्या है? मट्टी ने कहा जब से मैं मिट्टी हूँ, जब से मिट गई हूँ, जब से मैं मिट्टी हूँ, अल्लाह ने सारे खजाने मेरे नीचे रख दिए हैं। और अब इससे एक बड़ी मुश्किल बात एक और है, सारे खजाने इसके नीचे हैं, ये कहाँ है? हमारे कदमों के हमें अपना मुकाम पता ही नहीं है। मैनाज साहब हम कौन है? सारे खजाने इसके नीचे, ये कहा आलमगीर कादरी साहब? हमारे कदमों के नीचे। अल्लाह ताला कहता है तू मेरा खलीफा, मेरे नबी का नाइब है, कुरान का वारिस है, इस्लाम का नुमाइंदा है, तू आम आदमी नहीं है। टके टके पे ना बिका, टके टके पे ना बिका, तू बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है। वो अल्लाह का शाकार है, वाह, वाह, वो अल्लाह का शाकार है। तो टके पे बस इस शेर के साथ मैं अपने ज़ोक के लिए शेर पढ़ता हूँ कि आंसुओं से गुस्ल करके लहू से वुज़ू करे, आंसुओं से गुस्ल करके लहू से वुज़ू करे, ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे। बेकस मेरे इश्क़ जुनून का हाल ना पूछ, दामन जो फाड़ दूं फरिश्ते आगे रफू।